नमस्कार, वन टीवी के हिंदी समाचार में आप सबों का स्वागत है। मैं शहबाज। आगे बढ़ने से पहले देखेंगे हेडलाइंस। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद के झीलों के पास अवैध निर्माणों को हटाने की दी चुनौती। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी और असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से वक्फ अधिनियम पर मुलाकात की। शिवसेना ने मोदी सरकार पर बलात्कार के मामले को नजरअंदाज करने का लगाया आरोप। बदलापुर में नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार की घटनाओं ने मानवता को शर्मसार किया। कांग्रेस ने सरकार की विफलता पर उठाए सवाल। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय नेतृत्व ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, उप मुख्यमंत्री मल्ली भट्टी विक्रमार्का और टीपीसीसी के नए अध्यक्ष के चयन के लिए उत्तम कुमार रेड्डी की सिफारिशों पर गहन चर्चा की। उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया कि आला कमान ने टीपीसीसी पद के लिए महेश कुमार गौड़ और लक्ष्मण कुमार के नामों का समर्थन किया है, जबकि कैबिनेट के लिए सुदर्शन रेड्डी, प्रेम सागर राव और श्री हरि के नामों की सिफारिश की गई है। टीपीसीसी के नए प्रमुख की घोषणा जल्द होने की संभावना है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद की प्रमुख झीलों गंदीपेट और उस्मान सागर के आसपास अवैध इमारतों और अतिक्रमणों को हटाने की बात कही है। उन्होंने बताया है कि कुछ अमीर व्यक्तियों ने झीलों के पास फार्म हाउस बनाकर अपने नालों को गंदीपेट में मोड़कर शहर के जल आपूर्ति को गंभीर खतरे में डाल दिया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि सरकार किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेगी और अवैध कब्जाकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, चाहे वह कितने भी प्रभावशाली क्यों न हो। उन्होंने कहा कि हम किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं बल्कि सार्वजनिक संसाधनों की रक्षा के लिए कार्य करेंगे। ఈ చెరువుల యొక్క సంరక్షణ, ఈ చెరువులు మన జీవనాధారం, మన సంస్కృతి. హైదరాబాద్ నగరంలో ప్రధానంగా 1908లో వచ్చిన వరదలు, ముఖ్యంగా 115 సంవత్సరాల క్రితం ఈ నగరం మీద వరదలు ఉప్పెనై కమ్మేసి వేలాది మంది ప్రాణాలను బలిగొన్నది. ఆనాటి పాలకుడు నిజాం సర్కార్ చెల్లించిపోయి వేలాది మంది ప్రాణాలు కోల్పోవడానికి కారణమైన ఈ వరదల్ని నియంత్రించాలి అని అంటే ఏమి చేయాలి అని ప్రపంచంలో ఉండే గొప్ప వ్యక్తులందరినీ సంప్రదించి మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య గారిని, ప్రపంచానికి ఒక ఆర్కిటెక్ట్ అయిన మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య గారిని నియమించడం జరిగింది. వారు పూర్తిగా ఈ ప్రాంతాన్ని, ఈ క్షేత్రాన్ని, ఈ భూమి యొక్క నైసర్గిక స్వరూపాన్ని అర్థం చేసుకొని వికారాబాద్ అడవుల నుంచి వచ్చే వరదలని నగరం మీద పోటెత్తకుండా ఉండడానికి ఉస్మాన్ సాగర్, హిమాయత్ సాగర్ని నిర్మించి ఫిరంగి కాలువ ద్వారా, మూసీ నదుల ద్వారా, ఈసా నదుల ద్వారా వచ్చే నీటిని నియంత్రించి ఆ నీళ్లను నగరానికి తాగునీటిగా మార్చి ఈ ప్రాంతంలో గొలుసుకట్టు చెరువులను నిర్మించి హైదరాబాదు హెరిటేజ్ సిటీనే కాదు, హైదరాబాద్ ఈజ్ ఏ లేక్ సిటీ అని చెప్పి నిజాం సర్కార్ 100 సంవత్సరాల ముందే ఒక అద్భుతమైన కట్టడాలను నిర్మించి మనకు అందించాడు. వారి వారసత్వంగా వచ్చిన ఈ కట్టడాలు మొన్న జరిగిన ఎండాకాలంలో తాగునీటి సమస్య వచ్చే కృష్ణా, గోదావరి ఎండిపోతే హైదరాబాదు నగరానికి దాహార్తి తీసింది గండిపేట, అంటే ఉస్మాన్ సాగర్, హిమాయత్ సాగర్ నుంచి నగరానికి తాగునీటిని వాడుకున్నామన్న సంగతి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నేను చెప్పదలుచుకున్నా. ఈ ప్రజలకు కోట్లాది మంది దాహార్తిని తీర్చే ఈ యొక్క చెరువులను శ్రీమంతులుగా, గొప్ప వ్యక్తులుగా ఉన్న వాళ్ళు వాటి పక్కనే ఫామ్ హౌజ్ల పేరు మీద నిర్మించుకొని వాళ్ళ డ్రైనేజ్ కాలువలు తీసుకెళ్ళి గండిపేటలో కలిపినారు. నేను ఇక్కడ వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలతో పాటు ఇక్కడ వచ్చిన భక్తులను నేను ఒకటే మాట అడగదలుచుకున్నా. ఇవాళ వాళ్ళ విలాసవంతమైన జీవితం కోసం నిర్మించుకున్న ఫామ్ హౌజులలో నుంచి వచ్చే డ్రైనేజ్ గండిపేటలో హిమాయత్ సాగర్ తాగునీటిలో కలిపితే ఆ నీళ్లు హైదరాబాదు నగరానికి తాగడానికి సరఫరా చేస్తుంటే వాళ్ళు నిర్మించిన అక్రమ నిర్మాణాలను వదిలేస్తే ఇక నేను ప్రజాప్రతినిధిగా విఫలమైనట్ట కాదా మీరు ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి. అందుకే ఒత్తిడి వచ్చిన మిత్రులకు ఫామ్ హౌజులు ఉన్నా ఏవి వదలకుండా హైడ్రా అనే ఒక సంస్థను ఏర్పాటు చేసి తెలియకుంటేనే ప్రజాప్రతినిధులం కొన్ని మన దినచర్యల్లో భాగంగా కొన్ని తప్పిదాలు చేస్తుంటాం. తప్పులు తెలియకుంటేనే కొన్ని తప్పులు జరిగిపోతుంటాయి.
మరి ఆ ఖాతాను సవరించుకోవడానికి, ఆ బ్యాలెన్స్ షీట్ను సవరించుకోవడానికి తెలిసి కొన్ని మంచి పనులు చేయాలని నేను ప్రగాఢంగా విశ్వసిస్తున్నా, నమ్ముతున్నా. ఆ తెలిసి చెయ్యాలనుకుంటున్న మంచి పనుల్లో భాగము ఈ చెరువులను చెరబట్టిన వాళ్ళ నుంచి విముక్తి కలిగించాలన్న ఏకైక లక్ష్యంతోనే ఈరోజు చెరువులను ఆక్రమించుకున్న వాళ్ళను ఎవరిని వదలకుండా ఉక్కు పాదంతో అణిచివేయాలన్న ఆలోచన, అందులో నిర్మాణాలను ఏ ఒత్తిడి వచ్చినా వెనక్కి తక్కకుండా తొలగించాలన్న ఆలోచనతోనే ఈరోజు ఈ చెరువులలో ఉన్న అక్రమ కట్టడాలను కూలగొడుతున్నాము. దీనికి స్ఫూర్తి భగవద్గీత అనే కురుక్షేత్ర యుద్ధ సందర్భంలో అర్జునుడు ఆయుధాలను కింద పడేసి రాజ్యం కోసం భీష్మ పితామహుడు, అదేవిధంగా కర్ణుడు, దుర్యోధనుడు, దుశ్శాసనుడు నా సహోదరులందరూ ఆ పక్కన నించుంటే రాజ్యం కోసం వాళ్ళందరినీ వాళ్ళని సంహరించి రాజ్యాన్ని సాధించుకోవడం ద్వారా ఏమి ఉంటుంది, ఏం మనశ్శాంతి వస్తుంది అని చెప్పి అర్జునుడు యుద్ధతంత్రం నుంచి తప్పుకుంటా అన్నప్పుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు బోధించిందే భగవద్గీత. చంపేదెవరు, చంపించేదెవరు? లోక కళ్యాణం కోసం నీ బాధ్యతను నెరవేర్చాల్సిందే. ధర్మం బ్రతకాలి, అధర్మం ఓడాలి అంటే నువ్వు యుద్ధం చెయ్యాల్సిందే అనే యుద్ధ నీతిని ఆ రోజు అర్జునుడికి బోధించింది శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. ఇవాళ ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడి బోధనానుసారమే ఈరోజు ఈ చెరువులను కాపాడే కార్యక్రమాన్ని నేను తీసుకుంటున్నా. నాకు తెలుసు ఈ చెరువులలో నిర్మాణమైన విలాసవంతమైన ఫామ్ హౌజులు ప్రభుత్వాన్ని ప్రభావితం చేయగలిగిన స్థానాలలో ఉన్న చాలామంది వ్యక్తులు ఉన్నారు. ప్రత్యక్షంగా ప్రభుత్వంలో భాగస్వాములు అయి ఉండొచ్చు, లేకపోతే సమాజం మీద బాగా ప్రభావితం చేయగలిగిన వ్యక్తులు ఉండొచ్చు. కానీ వాటన్నిటినీ నేను పట్టించుకోదలుచుకోలే. ఇది భవిష్యత్ తరాలకు, ఇది రాజకీయాలకు సంబంధం లేదు. నేను స్పష్టంగా చెప్పదలుచుకున్నా. రాజకీయాల కోసమో లేకపోతే రాజకీయ నాయకులను కొంతమందిని దృష్టిలో పెట్టుకొని చేపడుతున్న కార్యక్రమం కాదు ఇది. భవిష్యత్ తరాలకు, మన పిల్లలకు, వాళ్ళ పిల్లలకు వారసత్వంగా మనం అందించే సంపద ఈ సరస్సులు, ఈ నదులు, లేకపోతే ఈ రోజున్న ఈ చెరువులు. ఈ ప్రకృతి సంపదను మనం విధ్వంసం చేస్తే ప్రకృతి మన మీద కక్ష కడుతుంది. ప్రకృతి మన మీద ప్రకోపిస్తే మనం చెన్నైలో చూసినాం, అదేవిధంగా ఉత్తరాఖండ్లో చూసినాం, నిన్నగాక మొన్న వాయనాడు, మనం కేరళలో. तेलंगाना राज्य के सीपीआई सचिव संभा शिवा राव ने कांग्रेस सरकार पर विधानसभा चुनाव से पहले किए गए वादों को पूरा न करने का आरोप लगाया है। हनुमनकंडा में आयोजित 3 दिवसीय राज्य बैठक के समापन पर केदर को संबोधित करते हुए राव ने सरकार पर रैतु भरोसा जैसे कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने, नए राशन कार्ड जारी करने और गरीबों को आवास प्रदान करने में विफल रहने का आरोप लगाया है। राव ने कहा है कि सरकार रैतु भरोसा योजना की प्रक्रिया में देरी कर रही है और किसानों को वित्तीय सहायता देने में भी नाकाम रही है। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार को जनता के गुस्से का सामना करने से पहले अपने वादे पूरे करने चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार रात जुबली हिल्स में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। बैठक के दौरान मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने मुख्यमंत्री को केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा पेश किए गए वक्फ अधिनियम संशोधन विधेयक पर बोर्ड और मुस्लिम विद्वानों के विरोध के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बोर्ड धर्मनिरपेक्ष दलों के मुख्यमंत्री से भी मिलकर इस विधेयक के संभावित हानिकारक प्रभावों के बारे में बताएगा। ओवैसी ने मुख्यमंत्री से इस बिल के धार्मिक स्वतंत्रता और मुस्लिम पर्सनल लॉ पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में भी बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के जलगांव में एक रैली को संबोधित करते हुए कोलकाता रेप मर्डर मामले पर बिना नाम लिए महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले लोगों को कड़ी चुनौती दी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अपराधियों की मदद करने वालों को भी बख्शा नहीं जाएगा। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार को भी इशारों में चेतावनी दी कि सबका हिसाब लिया जाएगा और ये संदेश ऊपर से नीचे तक स्पष्ट रूप से जाना चाहिए। कोलकाता रेप कांड पर ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल पुलिस के सिस्टम की आलोचना हो रही है। इसी संदर्भ में पीएम मोदी ने महाराष्ट्र से बंगाल के अधिकारियों और सरकार को सतर्क किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध ऐसी चीज है जिनके लिए कोई माफी नहीं दी जा सकती। पीएम मोदी ने अस्पतालों से लेकर स्कूलों तक हर स्तर पर लापरवाही की आलोचना करते हुए कहा कि ऐसी लापरवाही करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। साथियों, माताओं, बहनों, बेटियों का सामर्थ्य बढ़ाने के साथ साथ उनकी सुरक्षा भी
देश की प्राथमिकता है। मैंने लाल किले से भी बार बार इस विषय को उठाया है। आज देश का कोई भी राज्य हो, अपनी बहनों बेटियों की पीड़ा को, उनके गुस्से को मैं समझ रहा हूं। मैं एक बार फिर देश के हर राजनीतिक दल से कहूंगा, हर राज्य सरकार से कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है। दोषी कोई भी हो, वो बचना नहीं चाहिए। उसको किसी भी रूप में मदद करने वाले बचने नहीं चाहिए। अस्पताल हो, स्कूल हो, दफ्तर हो या फिर पुलिस व्यवस्था, जिस भी स्तर पर लापरवाही होती है, सबका हिसाब होना चाहिए। ऊपर से नीचे तक मैसेज एकदम साफ जाना चाहिए। ये पाप अक्षम्य है। अरे सरकारें आती रहेगी, जाती रहेगी, लेकिन जीवन की रक्षा और नारी गरिमा की रक्षा इस समाज के रूप में भी और सरकार के रूप में भी हम सबका बड़ा दायित्व है। साथियों, महिलाओं पर अत्याचार करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए हमारी सरकार कानूनों को भी लगातार सख्त कर रही है। आज इतनी बड़ी संख्या में देश की बहनों बेटियां यहां है, तो इसलिए मैं विशेष तौर पर आपको बताना चाहता हूं। पहले शिकायत आती थी कि समय पर एफआईआर नहीं होती, सुनवाई नहीं होती, मुकदमों में देर बहुत लगती है। ऐसी अनेक अड़चनों को हमने भारतीय न्याय संहिता में दूर कर दिया है। इसमें एक पूरा चैप्टर महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अत्याचार के संबंध में बनाया गया है। अगर पीड़ित महिलाओं को थाने नहीं जाना है तो वो घर बैठे एफआईआर दर्ज करा सकती है। हमने ये भी पक्का किया है कि एफआईआर से थाने के स्तर पर कोई टाल मटोल या फिर छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। इससे तेजी से जांच करने और दोषियों को कड़ी सजा मिलने में भी मदद मिलेगी। साथियों, नए कानूनों में नाबालिगों से हुए यौन अपराधों पर फांसी और उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। बेटियों के साथ शादी के नाम पर भी धोखे के कई मामले आते रहे हैं। पहले इसके लिए कोई स्पष्ट कानून नहीं था। अब भारतीय न्याय संहिता में शादी के झूठे वादों और छल को भी साफ साफ परिभाषित किया गया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, केंद्र सरकार महिलाओं के खिलाफ अत्याचार रोकने के लिए हर तरीके से राज्य सरकारों के साथ है। हमें भारत के समाज से इस पाप की मानसिकता को मिटाकर ही रुकना होगा।
कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप मर्डर के मामले के बाद से देश भर में बलात्कार की घटनाओं की चर्चा तेज हो गई है। शिवसेना नेता संजय राउत ने मोदी सरकार पर तीखा हमला किया है। उन्होंने अपने लेख में 13 प्रमुख बलात्कार मामलों का जिक्र करते हुए पूछा, कहाँ है वह 56 इंच छाती वाले। संजय राउत ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार के तहत महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ी है, लेकिन बीजेपी और उसकी महिला मोर्चा ने अभी तक इस पर ठोस प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने महाभारत के द्रौपदी के चीरहरण की घटना की तुलना करते हुए कहा है कि आज भी महिलाओं के साथ वैसा ही अन्याय हो रहा है जैसा उस समय में हुआ था। संजय राउत ने कठुआ से लेकर केरल तक के बलात्कार मामलों को उजागर किया और सरकार की नाकामी की आलोचना की। बात ऐसी है, महाराष्ट्र में एक आंदोलन चल रहा है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। ये जो सब हमारी बहनें हैं, दीदी, उनकी सुरक्षा के लिए, उस बारे में तो प्रधानमंत्री ने अब तक एक लफ्ज अपने मुंह से नहीं निकाला, टाला नहीं। तो अभी लखपति दीदी बनाएंगे। जहां जळगांव में आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी, वहां 15 दिन में 4 महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुए, 2 बच्ची है, एक दिव्यांग है। कोई जाकर बताइए प्रधानमंत्री जी को। अगर वहां मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम हो गए, गृह मंत्री, तो बताइए इसी जळगांव में 15 दिन में 4 नाबालिग लड़कियों के ऊपर अत्याचार हुआ है। प्रधानमंत्री जी, आप किसको लखपति बनाने जा रहे हो? पहले हमें हमारी दीदियों को सुरक्षा दीजिए। उस बारे में पूरे देश में बात नहीं हो रही है। बस प्रधानमंत्री आएंगे, अब दूसरी जगह पर जाएंगे, घूमते रहेंगे और हमारी दीदी न्याय के लिए घूमते रहेंगे, इस पुलिस स्टेशन से उस पुलिस स्टेशन। फिर पुलिस स्टेशन वाले उनकी एफआईआर नहीं लेंगे, फिर जनता आंदोलन करेंगी, फिर कोई कोर्ट में जाएगा और आंदोलन के ऊपर बंदी लगाएंगे। ये चल रहा है हमारे देश में। बोलिए। बीजेपी का ये कहना है कि महाविकास आघाड़ी जो है उसमें कहीं ना कहीं फूट और दरार पैदा होगी, क्योंकि सीएम के पद को लेकर तीनों पार्टियां जो है अपनी ओर से उम्मीदवार जारी कर रही है। देखिए, वो अपने सोचे, सही में महाविकास आघाड़ी वो अपनी बात, अपनी पार्टी, अपना गठबंधन टूटा फूटा, हाँ, मोड़ तोड़ तांबा पित्तल, वो गठबंधन उनका जो है ना, मोड़ तोड़ तांबा पित्तल, उनके बारे में सोचिए। महाविकास आघाड़ी के गठबंधन में किसी भी पद को लेकर कोई मतभेद, कोई दरार नहीं है। कल हमारी एक पहली बैठक हो गई सीट शेयरिंग के ऊपर, जहां मुंबई की सीटों के बारे में हमने तीनों पार्टियों ने चर्चा की और लगभग सहमति से 99% सीटों पर हमारी सहमति हो गई है। मुंबई की लिस्ट में कहूंगा, मुंबई की सीट से। तो ये महायुति वाले को बोले, आप आपकी बात करिए, हमारी बात मत करिए। ना मुख्यमंत्री पद के ऊपर हमारे यहाँ कोई मतभेद है, ना और किसी पद के ऊपर, ना सीट शेयरिंग के ऊपर। क्या कुछ आंकड़े डिसाइड हुए हैं? कल की हो जाएंगे, सब ठीक ठाक हो जाएगा। महाविकास आघाड़ी सरकार बना रही है, ऐसा कौन बोल रहा है? राज ठाकरे जो बात कर रहे हैं कि आपकी सरकार के टाइम पे भी ये चीज तो ये घटना हो रही थी, लेकिन उस टाइम लेकिन राज ठाकरे किस पार्टी के साथ है? वो तो मोदी शाह के साथ रहे हमेशा। जो महाराष्ट्र के दुश्मन है उनके साथ हमेशा रही ये नेता। अब जिसने बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी को तोड़ दिया है, उस पार्टी के साथ है, शिंदे जी के साथ है राज ठाकरे जी। तो आप उनके बातों को इतने गंभीरता से मत लीजिए। अब वो गंभीरता खत्म हो गई उनके बातों से। अगर राज ठाकरे कहते हैं कि हमारे जमाने में ये होगा, तुम्हारे जमाने में ये हो गया, ये बात करने का उनको अधिकार नहीं है सबसे पहले, क्योंकि अब तक उनकी दिशा स्पष्ट नहीं है। वो महाराष्ट्र के बाजू में है या महाराष्ट्र के जो विरोधी है उनके बाजू में है। हमेशा उनकी भूमिका, जो महाराष्ट्र पर हमले करते हैं, महाराष्ट्र तोड़ने की साजिश करते हैं, उनके साथ, उनको साथ देने का काम ये महाराष्ट्र के राज ठाकरे जी ने किया है। तो उनके ऊपर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा।
AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मध्य प्रदेश के छतरपुर में पुलिस थाने पर पथराव और हाजी शहजाद अली के घर को बुलडोजर से तोड़े जाने की घटना की तीखी निंदा की है। ओवैसी ने एक वीडियो का हवाला देते हुए कहा है कि हाजी शहजाद अली ने मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ मिलकर रामगिरी महाराज के साथ विरोध प्रदर्शन किया था, जिन्होंने कथित तौर पर इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। ओवैसी ने सवाल उठाए कि इस दौरान एडिशनल SP भी मौके पर मौजूद थे और उन्होंने शहजाद अली से लोगों को शांत करने को कहा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, 21 अगस्त के दिन जो वाक़या छतरपुर मध्य प्रदेश में हुआ, मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ। दोनों वाक़यात की जो पथरमबाजी हुई पुलिस स्टेशन के पास और जिस बर्बरियत और जुल्म के ज़रिए इक़्तिदार के इस घुमंड में डूबकर जो बीजेपी की वहाँ की सरकार ने हाजी शहजाद अली के घर को डिमोलिश किया, बुलडोज़रों से ज़मीन दोस्त कर दिया और साथ ही साथ उनकी तमाम 3 कारों को भी बुरी तरीक़े से उसको डैमेज कर दिया, मैं इसका कंडेम करता हूँ। मैं अभी हाजी शहजाद अली का एक वीडियो देखा हूँ जिसमें उन्होंने कहा कि उस दिन वो और वहाँ की जो ज़िम्मेदार तंजीम अंजुमन सदर, वहाँ के उलमा जाकर रिप्रेजेंटेशन किए। किस बात का रिप्रेजेंटेशन किए कि एक मलून शख्स ने अपनी गंदी ज़बान के ज़रिए हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की। और जब वहाँ पर वो लोग रिप्रेजेंटेशन दे रहे थे, जिसमें एडिशनल SP, डिप्टी कलेक्टर, SDM साहब भी थे, तो पथरमबाजी शुरू हुई। डिप्टी कलेक्टर SDM साहब ने हाथ पकड़कर हाजी शहजाद अली अपनी वीडियो में कह रहे हैं कि उनसे कहा कि आप आकर जनता को समझाइए। उन्होंने समझाया, पथरमबाजी उन पर भी हुई। उसके बाद एक मंसूबाबंद तरीक़े से 20,000 स्क्वायर फुट पर बना हुआ ये घर, जिसका परमिशन है उनके पास, वो कह रहे हैं, उसको डिमोलिश कर दिया गया। अगर परमिशन नहीं भी था तो क्या वहाँ की अथॉरिटीज़ को ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है दिल्ली डिमोलिशन पर कि ड्यू प्रोसेस को फॉलो किया जाए? क्या उन्होंने नोटिस दिया? नहीं दिया। और फ़ौरन बुलडोज़र के ज़रिए उनके घर को तोड़ दिया गया, ज़मीन दोस्त कर दिया गया। और उसके बाद वहाँ पर मध्य प्रदेश की छतरपुर की पुलिस चंद एलिज लोगों एक्यूज़ को गिरफ्तार करके उनकी बेइज्जती करती है, रोड पर उनको चलाती है और उनके ज़बान से नारे लगवाती है। मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकारें चलती हैं तो रूल ऑफ लॉ से चलती है, रूल ऑफ मॉब के ज़रिए नहीं। जो कुछ वहाँ पर हुआ रूल ऑफ मॉब के मुजाहरे हो रहे हैं। और बीजेपी की सरकार को, बीजेपी के लोगों को बताना चाह रहा हूँ मध्य प्रदेश के, कि आज इक़्तिदार और सत्ता आपके पास है, कल आपके पास नहीं रहेगी। तो क्या जो सरकार आएगी, जनता उनको हटाएगी, तो क्या वो सरकार आपके ज़िम्मेदारों को, उनके घरों को तोड़ दें बुलडोज़र के ज़रिए, आपके चेहरों को काला कर कर आपको रोड पर परेड करवाएं? आप जो कुछ कर रहे हैं वो संविधान का वायलेशन है। नरेंद्र मोदी बहैसियत वज़ीर आज़म, प्रधानमंत्री, पार्लियामेंट में संविधान को चूमते हैं और चूमने का ड्रामा करते हैं, और वहाँ पर बीजेपी की सरकार संविधान की धज्जियाँ उड़ा रही है। किसी के घर को डिमोलिश कर दिया जाता है, किस बुनियाद पर? बदलापुर में लगातार हो रहे नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार की घटनाओं ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार इन दोनों लड़कियों के साथ पिछले 15 दिनों से ज्यादती हो रही थी। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में इस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही है और सरकार लड़कियों और महिलाओं को सुरक्षा देने में पूरी तरह विफल रही है। पटोले ने सरकार और प्रशासन पर आरोप लगाया कि उनकी कमी के कारण इन घटनाओं में वृद्धि हो रही है और उन्होंने मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराते हुए उनसे इस्तीफा की मांग की। महाविकास अघाड़ी ने बदलापुर में नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार की घटनाओं की निंदा करते हुए महायुति सरकार के खिलाफ हड़ताल की घोषणा की थी, लेकिन मुंबई हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। इसके बाद विपक्षी दलों ने पूरे राज्य में काली पट्टी बांधकर मौन विरोध प्रदर्शन कर रही है।
बंदच्या हाक देण्यात आलेली होती, मात्र कोर्टाच्या आदेशानंतर तुम्ही तो निर्णय मागे घेतला. मात्र आज निषेध आंदोलन ठिकठिकाणी केली जात आहेत. काय स्वरूप? माननीय उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचं आम्ही आदर करतो. आम्हाला वेळ कमी पडला म्हणून, नाही तर आम्ही सुप्रीम कोर्टातही गेलो असतो. पण महाराष्ट्रातली जी काही घटनाक्रम चाललेला आहे ही एकच बदलापूरची नाही, तर या घटनाक्रम सातत्यानं चालत आहे आणि शाळेमध्ये लहान मुलं आता सुरक्षित नाही असं चित्र आज निर्माण झालेलं आहे आणि लोकांमध्ये तीव्र चीड आहे. आम्ही जो काही राजकीय उद्देशाने हे बंदची हाक दिली नव्हती, लोकांच्या तीव्र भावना लक्षात घेता त्यांना कोणीतरी त्यांच्या पाठीशी उभं राहावं ही भावना जनतेची महाराष्ट्राची होती आणि म्हणून आम्ही हे बंदची हाक या ठिकाणी दिली होती. पण सरकार आपले बगलबच्चे कोर्टामध्ये पाठवून ज्या पद्धतीनं स्वतःला प्रोटेस्ट करण्याचा प्रयत्न करत आहे, पण लोक गेली वाऱ्यावर, त्यांच्या मुलांवर अत्याचार होत आहे ते त्यांना चालेल, पण स्वतःला प्रोटेस्ट करण्यासाठी आपल्या बगलबच्च्याला कोर्टात पाठवून त्यांनी काल माननीय हायकोर्टाचा जो निर्णय करून घेतलेला आहे, आमच्याजवळ वेळ अपुरा पडला, नाही तर आम्ही सुप्रीम कोर्टातही गेलो असतो. कारण की माननीय हायकोर्टाचा निर्णय आम्हाला मान्यच नाही खरं तर. आम्ही दाद मागितलीच असती या निर्णयाच्या विरोधात, पण ठीक आहे, माननीय उच्च न्यायालयाचा आदर करून आज आम्ही प्रोटेस्ट करतोय आणि आम्ही पट्टी तोंडाला बांधून हे सरकार स्वतःला वाचवण्यासाठी, आपण वाचलं बाकीचं मेले तरी चालेल, पोलिसांचा वापर पूर्ण आपल्यासाठी स्वतःसाठी करताना आपण पाहतोय. खरं तर या महाराष्ट्रातल्या ज्या डीजी आहेत रश्मी शुक्ला, त्याच अकार्यक्षम आहेत. त्याच्याबद्दलचं आम्ही सांगितलं, पण त्या कशा आल्यात ते सगळ्यांनाच माहिती आहे त्या पदावर. त्यामुळे सरकार आणि डीजी हे दोघंही यांना जबाबदार आहे आणि आज हेतुपुरस्पर जे चांगले अधिकारी आहेत त्यांच्यावर कारवाई करायची, अधिकाऱ्यावर दबाव आणायचा, अधिकाऱ्यांनी ऐकलं नाही तर त्यांच्या बदल्या करायच्या, त्यांच्यावर कारवाई करायची, खोटे गुन्हे दाखल करायचे, असं पण या महाराष्ट्रामध्ये चित्र चाललेलं आहे. एक काळामध्ये महाराष्ट्राचा पोलीस देशातच नव्हे तर जगामधला सगळ्यात मजबूत पोलीस मानलं जात होतं. पण आज महाराष्ट्रातला पोलीस कुठल्याच लेव्हलवर आहे. पोलिसांच्या घरी माहीममध्ये 13 घरी एका रात्री घरफोड्या होत असतील, डाका पडत असेल, याच्यापेक्षा दुर्दैव या महाराष्ट्रातलं काय. आणि त्याच्यामुळे हे जे सरकार आपल्या बगलबच्च्याला पाठवून कोर्टामधून आपला बचाव तो करून घेतला, पण जनतेच्या नजरेतून यांचा बचाव होणार नाही. धन्यवाद. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पूछे गए 10 सवालों पर कांग्रेस ने जोरदार पलटवार किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेरा ने तंज कसते हुए कहा है कि अमित शाह को सवाल पूछने से पहले एक बादाम खाना चाहिए था, ताकि उन्हें याद रहता कि उन्होंने जिस टीडीपी से हाथ मिलाया है उसने अपने चुनावी घोषणा पत्र में भारतीय कश्मीर में पाकिस्तान की मुद्रा चलने की बात कही थी। पवन खेरा ने राहुल गांधी के प्रयागराज दौरे और असम महाराष्ट्र में हुए आपराधिक घटनाओं पर भी प्रतिक्रिया दी और भाजपा पर इन मुद्दों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। शाह जी से ये जानना चाहते हैं कि जब पीडीपी से इन्होंने समझौता किया था, क्या पीडीपी का मैनिफेस्टो पढ़ा था? चलिए, पीडीपी का मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा होगा जिसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों की करेंसी के बारे में जिक्र था कि दोनों को लागू किया जाएगा, जिसमें सेल्फ रूल के बारे में बड़ा लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट था। उसके बावजूद आपने उनसे समझौता करके सरकार बनाई। सरकार बनाने के बाद एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया। उसमें आपने क्या लिखा? आपने लिखा कि अटल जी की नीति पर चलते हुए हुर्रियत से भी बात करेंगे। क्यों लिखा था बताइए? ये अनाप शनाप बोलने की आदत एक बीमारी सी लग गई है भाजपा के नेताओं को। गृह मंत्री के पद पर बैठे और इस तरह की हल्की बातें करते हैं। आखिर में हेडलाइंस फिर। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद के झीलों के पास अवैध निर्माणों को हटाने की दी चुनौती। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी और असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से वक्फ अधिनियम पर मुलाकात की। शिवसेना ने मोदी सरकार पर बलात्कार के मामले को नजरअंदाज करने का लगाया आरोप। बदलापुर में नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार की घटनाओं ने मानवता को शर्मसार किया। कांग्रेस ने सरकार की विफलता पर उठाए सवाल। हिंदी समाचार यहीं पर खत्म हुआ। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी कल मुलाकात।